Good morning, everybody. So, today we are going to revise this second last unit of our class 12 physics syllabus, semiconductor electronics, materials, devices, and simple circuits. We are following up the Oswald's CBSE mind maps, and we'll be revising through them. So, the first thing that comes in picture when we study about semiconductor electronics, it's about semiconductor. What are semiconductors? So if you see materials around you, you would understand that materials around us are classified based on their conductivity into three categories: metals, semiconductors, and insulators. And here they have mentioned the band theory also. Band theory will be showing up right now. But moreover, it's about conductivity. How much conduction the material can allow, that decides what type of material it is. So now when they have divided it in this way, the first category is conductors. Now, what is a band theory? We need to understand that. So, class, the point is that when a single atom is there, when you have a single atom like this, it has a nucleus, it has the energy levels like this, and the energy levels are quite discrete. Okay, these are discrete energy levels. And for what this happens for isolated atoms. Whenever an atom is isolated, the energy levels are quite discrete from each other, and you can always define which electron would be lying in at which level, and their corresponding energies too, right? Now when you bring two or more than two atoms close together, like in a lattice, when more atoms are brought closer, what happens? The energy levels, the internal energy levels might remain discrete, but the external energy levels start merging. Okay? The external energy levels start merging, and they start forming continuous continuous energy levels. Like you can say continuous energy levels, and continuity, to show continuity we mention the word band. बैंड इज़ द राइट वर्ड. एनर्जी लेवल्स इतने पास पास आ जाते हैं कि उन्हें कंटिन्यूस मान लिया जाता है, और जब वो इतने कंटिन्यूस हैं तो उनको रैदर देन कॉलिंग देम एज एनर्जी लेवल वी कॉल देम एज एनर्जी बैंड. अब इस एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग जितने भी अंदर वाले एनर्जी लेवल्स हैं, यानी इंटरनल n इक्वल टू 1 2 3 4 तो हो गए, बट उसके अलावा n इक्वल टू 3 भी, लेट्स से इट्स एन एटम ऑफ सोडियम. तो अब सोडियम में क्या है? 2 8 1. सो इंटरनल एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1, देन n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3. n इक्वल टू 3 लेवल तक जो भी आपके एनर्जी लेवल्स अंदर बन रहे हैं, उन सबको हमने क्या बोल लिया? अपना वैलेंस बैंड. देन वैलेंस बैंड के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जीज हैं, कुछ रेंज है एनर्जीज की. या दिस बैंड इज ऑफ एनर्जी. ये कोई लोकेशन नहीं है, ये एनर्जी का बैंड है. एनर्जी लेवल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पास पास हैं, इसलिए हम बैंड कह रहे हैं. नाउ वैलेंस बैंड से कुछ ऊपर हमारा कौन सा एनर्जी लेवल होता है? दैट इज कॉल्ड एज आर कंडक्शन बैंड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन लेवल, मतलब कंडक्शन स्टेज पे पहुंचने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन को कुछ पर्टिकुलर एनर्जी गेन करनी पड़ती है, एंड दैट energy gained is called energy gap. Yeah, you can call it as band gap. Now this energy band gap decides what type of material it is. If the band gap is very small, for example like in a metal में क्या होता है? आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये दोनों मर्ज कर रहे होते हैं. This is how valence band is, this is how your conduction band is, and they're overlapping of this. So this is the case where Eg is nearly equal to 0. यानी वैलेंस बैंड के जो सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सबसे ऊपर वाले लेवल पे हैं, वो आराम से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं. इसलिए यहाँ पे Eg इज इक्वल टू 0 और लेस दिया है. डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज वेरी हाई, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स they can travel from valence band, the uppermost energy levels of valence band, to conduction band. And then they have given you this range also.
सो दिस इज़ हाउ इट इज़. अब आपको अगर वैलेंस बैंड कभी दिखाना है तो वैलेंस बैंड में आप एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे, उसे कहते हैं होल and electrons. Electrons, you are aware that electrons is a charge carrier. Now hole is another charge carrier. What is hole? Hole is vacancy of electrons. Like if there is a absence of electron, that is called as vacancy of electron, and that vacancy creates a disturbance in the environment. For example, if you have 3 electrons here and 1 vacancy here, then this electron will definitely try to enter this particular vacancy, so that this particular electron would try to enter this hole to fill up the vacancy. But the moment it will dislocate from here to here, again another vacancy would be created here. So what we see that the hole has propagated in this direction, electron has propagated in this direction. So this is how the holes travel, this is how the electrons travel. Hole is the absence of electron, so we consider that hole has a positive charge, and an electron has a negative charge. We are aware about that. Then the second category that we have is of in semiconductors. Now what is a semiconductor? Semiconductors are devices, not devices, semiconductors are material for which the energy gap between valence band and conduction band is nearly 0.72 eV. For example, you can see this two type of two semiconductors we are aware of, जर्मेनियम, सिलिकॉन. बट अगर आप ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो सब आपके सेमीकंडक्टर की रेंज में ही आते हैं. सो फॉर सेमीकंडक्टर्स द एनर्जी गैप इज 0.72 EV for germanium. This is something that you need to memorize for CBSE. And for silicon it is 1.1 EV. So this energy gap is there in the semiconductor, and we need to provide electron, or I would say the system, with some energy so that the electron from the valence band can reach the conduction band. When we'll be showing this diagram, we will be showing few electrons here. Like for each energy level I'm gonna show 2 electrons and then 1 electron and 1 hole, and similarly I can show 1 electron in the conduction band also. This is how I'll make a semiconductor. This is an intrinsic semiconductor I'm making because it's a pure semiconductor lattice. Yeah, intrinsic semiconductor. Intrinsic means the pure semiconductor, which has no other element added into it. Now semiconductor we studied. Now let's talk about insulators. So what happens for insulators? Insulators have very high energy gap. How much is the energy gap? It's 7 EV. Like if you'll see the conduction band and if you see the valence band, there is a huge gap between them. Eg equal to 7 EV means you need to give a lot of energy for electrons from valence band to reach the conduction band. That's why the insulators never conduct. Now, once we have studied this, the point to be studied is that semiconductors are the materials which have accelerated the growth in electronics sector. Earlier we had electrical sector. Ohmic devices come in the electrical category, but semiconductors have revolutionized this electronics branch, and electronics branch is all about semiconductors. So to make the semiconductors, how the semiconductors are quite useful. Why? Because the semiconductors can conduct and can give you controlled conduction. This controlled conduction is quite helpful. We can have variety of values for voltages and currents, so that we can make our circuit work like digital systems. Digital systems में 1010 होता है. तो ये सिस्टम 1010 क्या है? दिस शोज हाई वोल्टेज, जीरो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, जीरो वोल्टेज.
So this high voltage and zero voltage, this binary form can help us create numbers and the coding part and many other things that are happening around us. Moreover, the semiconductor devices have made the systems quite miniature. Like we have very small, we have today we have phones, mobile phones the that have the ability to do all the computation like a computer. The computers have become very thin today. Why? This is happening because we have semiconductor devices into picture, which are very small in size and they can help us out in getting the functions done. That's why this semiconductors and electronics branch is quite important. Now, to make the semiconductors quite useful, what we do a phenomena which is called as doping. डोपिंग क्या है? एडिशन ऑफ एक्सटर्नल इम्प्योरिटी. हमें बाहर से कोई इम्प्योरिटी डालनी है. अब ये इम्प्योरिटी ऐसी नहीं है कि धूल मिट्टी डाल दी है. हम इसमें डालेंगे पी टाइप एलिमेंट. अब आप कहेंगे पी टाइप एलिमेंट क्या है? ग्रुप 13 के एलिमेंट्स अगर आप कभी भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में एडअप करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर दैट वी आर मेकिंग. एंड देन अगर आप ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एन टाइप. अब इसे पी टाइप और एन टाइप क्यों कहते हैं? देखिए, एन टाइप यहाँ हुआ, पी टाइप यहाँ हुआ. इतना समझिए कि अगर सिलिकन के एटम्स आपके आसपास रखें, सिलिकन की लैटिस है, इस लैटिस में सिलिकन अपने 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं उनके साथ बॉन्डिंग करेगा. बट अगर सिलिकन के जस्ट नेक्स्ट मैं एक एल्यूमिनियम रख दूँ, एल्यूमिनियम यानी ग्रुप 13, तो एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं. तो एल्यूमिनियम सिलिकन के बाकी एटम्स के साथ तो बॉन्डिंग कर लेगा 3 सिलिकन के साथ, बट एक सिलिकन के साथ वो एक होल बनाएगा, एक होल एग्जिस्ट करेगा बॉन्डिंग में. एंड दिस होल विल क्रिएट अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. कैसे? बिकॉज द लैटिस में हमारे होल्स आ जाएंगे और एल्यूमिनियम हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाले. लेट्स से हमने 3 ppm डाले हैं. क्लास, ये ppm बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी करना. ppm का मतलब है जो भी आपको वैल्यू दी है 2.23 अगर दी है, डिवाइड बाय 10⁶ इनटू ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन. ऐसे करके आप निकालेंगे कि आपने कितनी कॉन्सेंट्रेशन में होल्स, मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन में आपने एल्यूमिनियम को ऐड किया है या कितनी कॉन्सेंट्रेशन में आपने फॉस्फोरस को ऐड किया है. तो ये ppm का ये जो फॉर्मूला है 2.23, तो मैं नंबर इसलिए दे रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन में वो दे सकते हैं कि इतना 2.23 ppm इज़ एडेड इनटू द लैटिस. तो आप 2.23 करेंगे, मेन इज़ 10⁶ से डिवाइड होना है और इनटू ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन जो आपको दी गई उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितनी डोपिंग की गई है. नेक्स्ट इज़ दिस वॉज अबाउट द पी टाइप. अब पी टाइप में क्या हो रहा है कि आपके पास आप देख रहे हैं होल्स बढ़ रहे हैं. यस. तो अगर आप पी टाइप वाले का वो बनाएं एनर्जी बैंड डायग्राम तो कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पे पी टाइप मैंने लिखा है. पी टाइप में आपने लिखा है फॉर सिलिकॉन डोप्ड विद एल्यूमिनियम. तो आपने क्या किया? आपने बनाया एक कंडक्शन बैंड. ये सिलिकन का है, आपने बनाया एक वैलेंस बैंड. सिलिकन के लिए एक फिक्स डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एनर्जी गैप में. बट ये जो एल्यूमिनियम के होल्स हैं, एल्यूमिनियम के होल्स को बस थोड़ी एनर्जी चाहिए. मतलब एल्यूमिनियम के होल्स में अगर थोड़े से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर जाएं तो वो क्या होगा कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के होल्स में ड्रॉप कर गए टू गेट द सिस्टम, आई वुड से बैलेंस्ड सिस्टम में जहाँ जहाँ होल है उसे ख़त्म करने के लिए अगर कंडक्शन बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आए तो वो होल्स कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर. यस. तो इस प्रोसेस को होने के लिए होल्स को कम एनर्जी चाहिए वैलेंस बैंड के कंपैरिजन में. इसलिए होल्स का जो एक एनर्जी लेवल तैयार होगा दैट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर लेवल. एक्सेप्टर लेवल वाई? बिकॉज होल्स आर रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स का एनर्जी लेवल है. अब ये एनर्जी लेवल ओरिजिनल से कितना ऊपर है? 0.1 EV. 0.1 EV ये ऊपर होता है इससे. और अब बस ये है कि वैलेंस बैंड में आपको क्या मिलेंगे? वैलेंस बैंड में आपने थोड़े से होल्स बनाने हैं.
कुछ इलेक्ट्रॉन बनाइए और होल्स बनाइए, होल्स ज़्यादा बनाइए, क्योंकि पी टाइप इम्प्योरिटी क्या करती है, होल्स बढ़ा देती है लैटिस में। कंडक्शन बैंड में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं हर लेवल पे। तो दिस एक्सेप्टर लेवल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, तो मतलब इसका क्या हुआ कि होल्स ऊपर जा रहे हैं। दिस इज़ योर एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब, इसको दिमाग में रखने के लिए आप ऐसे कहिए कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर यानी होल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। पर होल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर बनाएगा, नो। सेमीकंडक्टर हमारा अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि ज़रा ध्यान से सोचिए, जितने सिलिकॉन के एटम्स डाले थे उसमें कुछ एल्यूमिनियम के एटम्स डाले थे। सिलिकॉन के एटम्स भी न्यूट्रल थे, एल्यूमिनियम के एटम्स भी न्यूट्रल थे। यहाँ पे कोई एडिशनल चार्ज नहीं क्रिएट हो रहा है, बस इतना है कि बिकॉज दे हैव अ डिफरेंस इन देयर वैलेंसीज, वी हैव होल्स प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम्स प्रेजेंस। ओके, एडिशनल चार्ज कहीं से नहीं आया। एल्यूमिनियम के प्रोटॉन्स जितने थे, एल्यूमिनियम के भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। सिलिकॉन के जितने प्रोटॉन हैं, सिलिकॉन के भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। सो द नेट चार्ज ऑन दिस सेमीकंडक्टर इज 0. The next is your N type semiconductor. N type semiconductor में क्या है कि आपकी डोपिंग होगी, पर किसकी होगी डोपिंग? डोपिंग विल बी ऑफ N type semiconductor has doping of group 15 elements. ग्रुप 15 में मैं क्या बोलूँगी? फॉस्फोरस। लेट्स से आई ऐड फॉस्फोरस। तो अब क्या होगा, सिलिकॉन आपके आसपास है, सिलिकॉन की आपने लैटिस बना दी, पर सिलिकॉन के एक साइड में आपका फॉस्फोरस का एटम भी आपने ऐड किया है। तो अब क्या है, सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ फॉस्फोरस ने बॉन्डिंग बनाई, पर फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये लैटिस में क्या करेगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप कर देगा। और ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, इनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए। नाउ सिंस बिकॉज इन्हें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो पहले तो ये वैलेंस बैंड से तो काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे। कंडक्शन बैंड मेरा यहाँ है, और क्योंकि इन्होंने क्या किया है, लैटिस को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसलिए इसे डोनर लेवल कहा जाता है, डोनर लेवल ऑफ। और इनके बीच का गैप भी कितना है, 0.1 eV। तो यानी कि सेमीकंडक्टर जिसके लिए कंडक्शन बैंड के बीच में गैप 0.72 eV है, उसमें बस यहाँ पे 0.1 eV एनर्जी अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाए, तो ये सारे के सारे कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। तो इस लैटिस को बनाते वक्त आप क्या दिखाएंगे, कंडक्शन बैंड में आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, और वैलेंस बैंड में आप क्या दिखाएंगे, वैलेंस बैंड में आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, यहाँ पे एक होल दिखा दीजिए। दिस इज हाउ योर लैटिस विल बी कंप्लीट। दिस इज योर डोनर लेवल एंड दिस इज फॉर एन टाइप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंड डायग्राम्स अक्सर वो पूछते हैं मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए, एंड देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ये एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक क्यों है? बिकॉज एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड की गई है, इनमें डोपिंग हो रखी है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, पी टाइप एंड एन टाइप। कीप दैट इन माइंड। इसमें भी यही चीज़ है कि अब आप एन टाइप का मतलब नेगेटिव समझेंगे, यानी इसमें होल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ये आप नहीं कहेंगे, ये न्यूट्रल होते हैं। इतना समझिए कि सेमीकंडक्टर को एनर्जी देना, एक तो रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेते हैं कि आपने रूम में जितनी हीट है वो इलेक्ट्रॉन्स एडअप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कुछ होल्स भी क्रिएट कर जाते हैं। बट उसके अलावा अगर आपने और एनर्जी दी बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या बाय मोर टेम्परेचर, तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। सेमीकंडक्टर की ब्यूटी ये है दैट सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टर्स में ये घटती है, पर इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये भी हमें ध्यान रखना है। नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम समझते हैं कि करंट कंडक्शन कहाँ से होता है, यानी करंट किसकी वजह से जनरेट होता है। तो करंट, इसमें ध्यान रखिए,
N intrinsic, Ni is number density of intrinsic charge carrier. It means is equal to Ne equal to NH. यानी इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी और होल्स की नंबर डेंसिटी सेम होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही होल्स भी बनेंगे. वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस से ही होल बना है. तो इलेक्ट्रॉन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गया है तो इस हिसाब से करंट कंडक्शन क्रिएट होगा. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है इन्होंने, आई इक्वल टू एन ई प्लस एन एच. ये फॉर्मूले में गड़बड़ है. एन ई को आपको ई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड एन एच को भी आपको ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नंबर डेंसिटी है. बस इतना ध्यान रखिए कि जो करंट क्रिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से भी हो रहा है, होल डेंसिटी की वजह से भी हो रहा है सेमीकंडक्टर में. देन नेक्स्ट इज आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. यहाँ पे आते हैं इम्प्योर और डोप्ड सेमीकंडक्टर. सो एन टाइप सिलिकॉन जर्मेनियम डोप्ड विद पेंटावैलेंट, यानी कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड टिन. दीज एलिमेंट से जब आप सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोप करते हैं तो इसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडिशन कहते हैं और इससे बनता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर. देन इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड देन होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. सो एन टाइप में ये तो आप कहेंगे ही कि एन ई इज मोर देन एन एच. देन पी टाइप में चलते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डोप्ड विद ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स लाइक बोरॉन एंड एल्यूमिनियम. इनसे जब ऐड करेंगे तो पी टाइप बनेगा एंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं और होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं. तो दिस इज हाउ वी गेट द टू कैटेगरीज. एनर्जी बैंड के बारे में जो अभी आपने स्टडी किया उस डेफिनेशन को भी हमें समझ लेना चाहिए. What is the energy band? A range of energies associated with quantum states of electrons in crystalline solid. Now, what do they mean by crystalline solid? That is लैटिस में जब भी आपने एटम्स को अरेंज किया है तो एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूस हो जाएंगे और उस कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स में जो रेंज है एनर्जीज की, दैट एनर्जी रेंज इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड. अब इसमें एक वैलेंस बैंड है. वैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन. यानी 0 केल्विन यानी जब एक्सटर्नल टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट 0 है, यानी कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स वो सब आपको कहाँ मिलेंगे? वैलेंस बैंड में. तो दिस इज द स्टेज. Then conduction band is bands with higher energy above the valence band. So conduction band is the electrons which have higher energy, they stay in conduction band and they can start the conduction. Conduction band में पहुंचने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा आप external temperature देंगे. It should not be absolute 0. Then band gap और forbidden gap क्या है? The difference between the highest energy in the valence band and lowest energy in the next higher band. यानी कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के हाईएस्ट एनर्जी लेवल के बीच का ये जो गैप है, दिस इज कॉल्ड एज योर बैंड गैप. या ये डेफिनेशंस मतलब आपकी पूछी जाती है एट टाइम्स और आपके एमसीक्यूज में भी आ जाती है. तो दैट्स हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायोड. डायोड पे आपका एक 12th का एक्सपेरिमेंट भी है प्रैक्टिकल में, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है और वैसे भी आपको ये सीखना पड़ेगा बिकॉज 7 मार्क में ये ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं. तो सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है? सेमीकंडक्टर डायोड. तो अब एक बात सोचिए, आपने अभी पी टाइप और एन टाइप के बारे में सीख लिया. अब लेट्स से कि मैं पी टाइप का और एन टाइप का एक एक वेफर बनाती हूँ, स्मॉल वेफर. ये पी है, ये एन है. अब इनको मैं अगर पास में लेकर आऊँगी तो क्या होगा कि पी टाइप पर मेरे सबसे ज़्यादा क्या है? होल्स. और एन टाइप पर मेरे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ही इन दोनों को साथ में रखा जाता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ ट्रैवल करते हैं और दिस इज हैपनिंग ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो चार्ज फ्लो कर रहा है, सो डिफ्यूजन करंट इज हैपनिंग. एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, होल्स विल मूव फ्रॉम हेयर. क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब होल्स को फिल करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे.
सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज जब डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे क्या क्रिएट होने लगता है, एक तरीके का डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, तो ऐसे समझिए कि P और N, इनके बीच में N जैसे जैसे होल्स को फिलअप करते जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, तो N टाइप होने के लिए इनके पास फॉस्फोरस लेट से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी रही होगी। तो अगर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, आगे भेजा है, तो ये क्या रह जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन रह जाएगा, क्योंकि उसके प्रोटॉन्स अभी भी 15 हैं बट इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 14, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। तो इस साइड पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज क्या है, मूवेबल नहीं है, इट्स इमूवेबल चार्ज। एंड यहाँ पे आपके होल्स थे, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है, तो ये होल आए थे हमारे एन टाइप पी टाइप इम्प्योरिटी से। तो उस पी टाइप इम्प्योरिटी में लेट्स से 13 प्रोटॉन्स थे, तो अब उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया है। अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड आयनाइज्ड एटम्स, बेसिकली आयनाइज्ड एंटिटी समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे चार्जेस तो हैं, पर ये चार्जेस क्या हैं, इमूवेबल हैं, ये मूव नहीं कर सकते। तो दिस रीजन इज बेसिकली डिप्लीटेड ऑफ मूवेबल चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे मूवेबल चार्ज कैरियर्स नहीं हैं, और इस डिप्लीशन ऑफ मूवेबल चार्ज कैरियर्स की वजह से इस रीजन को क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। क्या ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन करंट। अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद जब ये वाली चीज़ हो जाती है, एक नया फिनोमेना शुरू होता है। यहाँ पे आपके पास प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, ई इंटरनल। या अब यही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पी साइड पर जो भी आपके थोड़े से अंदर वैलेंस बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपको पता है कि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। होल्स सबसे ज़्यादा थे, माइनॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ माइनॉरिटी क्या है, होल्स। तो अब क्या होता है, नेक्स्ट फिनोमेना इज दिस माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एन साइड। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है फ्रॉम दिस साइड, पी साइड टू एन साइड। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं, होल्स यहाँ पहुँच जाते हैं बाई चांस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो होल्स अपने आप यहाँ पहुँच रहे हैं। तो नाउ व्हेन ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, उस केस में डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस। शुरुआत में डिफ्यूजन करंट ज़्यादा था आई ड्रिफ्ट से, अब ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा है डिफ्यूजन से। एक स्टेज ऐसी आती है जब आई डिफ्यूजन बिकम्स इक्वल टू आई ड्रिफ्ट और इस स्टेज में हमारा जंक्शन बन जाता है। यानी वी हैव गॉट अ डिवाइस विच हैज़ एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। यानी उसमें पी और एन साइड के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायोड को एक यूज़फुल मटेरियल बना देती है। क्यों? बिकॉज अब एक ये छोटा सा जो ये अपने वेफर साइज़ बनाया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे शो करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ट्रायंगल इंडिकेट्स पी साइड, द स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स एन साइड। या अब अगर आपने डायोड को, पहले तो देखिए दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फिनोमेनास दैट हैपेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड। अब उसमें आपको डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ये दो वर्ड्स लिखने हैं, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। अनदर क्वेश्चन दैट कैन कम इज हाउ मेनी मोड्स अ डायोड कैन फंक्शन। तो अब इन मोड्स में जब आ जाती है बात, तो आपको लिखना होगा कि ये फॉरवर्ड बायस में काम कर सकता है 1, या रिवर्स बायस में। तो ये है आपके सामने फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस क्या है, जब आप डायोड की जो पी साइड है उससे अगर आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लगाएंगे और डायोड की एन साइड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से लगाएंगे, तो दैट वुड बी योर रिवर्स बायस्ड। दिस योर रिवर्स बायस्ड अरेंजमेंट। नाउ व्हाट इज द फॉरवर्ड बायस? पॉजिटिव टर्मिनल टू द पी साइड,
negative terminal to the inside. In this case the diffusion current increases, depletion layer reduce. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है आपका, अब आपने एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो एन से पी की तरफ है, बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाली वो पी से एन की तरफ है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने रिड्यूस करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने की वजह से जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है ये भी क्या हो जाएगी, छोटी. और इसकी वजह से क्या होगा, करंट बहुत आराम से फ्लो करेगा. कौन सा करंट, डिफ्यूजन करंट. और डिफ्यूजन करंट ज़्यादा फ्लो करेगा यानी कि फॉरवर्ड बायस में डायोड बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा. अब अगर मैं रिवर्स बायस वाली अरेंजमेंट में जाऊँ, इसमें नेगेटिव टर्मिनल को हम पी साइड से कनेक्ट करते हैं. आप देख सकते हैं एंस वाला आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है और पी साइड को आप करेंगे कनेक्ट किससे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. इस केस में डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होता है और डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है. क्यों, क्योंकि आपकी जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी से एन साइड पे है, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दी है वो इधर से इधर दी है. जस्ट अ सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, यहाँ पे ये बनाई है यस. हाँ, जो इसकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किधर से किधर है, एन से पी की तरफ, आप जानते हैं. तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन की होने की वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत बड़ा हो जाता है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है. यानी इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी की तरफ ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल ही नहीं कर सकते, बीच में एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप है. इसकी वजह से रिवर्स बायस में इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो करते हैं, करंट कम फ्लो करता है. इसलिए जब आप इसका वी आई ग्राफ बनाएं तो देखिए वी मैंने नीचे की तरफ दिखाया, ये मैंने वी पॉजिटिव बनाया है, ये नेगेटिव वोल्टेज दिया है क्योंकि हम नेगेटिव देंगे. यहाँ पे मैं आई बनाऊँगी, यहाँ आई बनाऊँगी. फॉरवर्ड बायसेस व्हेन वी एम गिविंग ए पॉजिटिव पोटेंशियल, उस केस में आप क्या बनाएंगे ग्राफ कि शुरुआत में करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक नी वोल्टेज आता है और उस नी वोल्टेज के बाद करंट तेज़ी से बढ़ता है. दिस इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज. और आप जानते हैं सिलिकॉन के लिए कितना है, सिलिकॉन के लिए है ये 1.1 EV और जर्मेनियम के लिए 0.72 EV. तो ये नी वोल्टेज की वैल्यू आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, 0.72 EV जर्मेनियम के लिए. और इस तरीके से आपका करंट बढ़ेगा. ये वैल्यू जो करंट की आती है मिली एम्पियर में आती है. मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि 2 मार्क्स में आपसे यही पूछ लिया जाता है, 2 और 3 मार्क्स में, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा. देन रिवर्स में क्या होगा कि आप पहले वोल्टेज देते जाएंगे, बहुत हाई वैल्यू वोल्टेज की देते जाएंगे, करंट आएगा ही नहीं. फिर जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन की, जिसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, उस पर बहुत तेज़ करंट आता है. क्यों, क्योंकि आपने एक्सटर्नल वोल्टेज इतना ज़्यादा दे दिया, एक्सटर्नल इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी कि जो पी साइड है वहाँ से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर के वो भी निकल के बाहर आने लगते हैं. और उस केस में आपका डायोड डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब डायोड की फंक्शनिंग इस तरीके से काम करती है और उसके बाद डायोड डैमेज भी हो जाता है. तो अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकल के बहुत हाई करंट बनाएंगे. एंड दैट्स हाउ you get good current, but that current again would be in microampere, not in milliampere. So this is how you make a reverse bias circuit. You can mention it as breakdown voltage. और आप देख सकते हैं कि ग्राफ इस तरीके का, it's not a straight line, it's a deviating curve. तो इस केस में आप क्या करते हैं, आपकी रेजिस्टेंसेस ऐसे बनाते हैं, ये आपका डेल्टा आई है, ये आपका डेल्टा वी है. तो आपकी जो रेजिस्टेंस आती है दैट कम्स आउट एज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई. एंड इस तरह की रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस, यानी बदलने वाली रेजिस्टेंस. तो आपको इस बात का ध्यान देना है. और इसके अलावा ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर. अब इसमें जो नेक्स्ट इज़ द रेक्टिफायर, अबाउट विच नथिंग इज़ मैंशनड हियर, बट नो वरीज. रेक्टिफायर के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं. यहाँ पे स्टडी करेंगे. What is a rectifier? Rectifier is a device that converts DC, or I would say that converts AC to DC. Now what type of AC and what type of DC? AC तो आपको पता ही है, ऑल्टरनेटिंग है, यानी जहाँ
वोल्टेज की वैल्यू दो पोलैरिटीज़ में वेरी करती रहती है। एंड डीसी क्या होता है, डीसी इज़ वैल्यू वैल्यू वेरी करे ना करे, दो कैटेगरीज हैं डीसी में भी। एक आपका कांस्टेंट डीसी हुआ जिसमें वैल्यू बिल्कुल नहीं बदल रही है, और एक तरह का डीसी इज जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं चेंज हो रही है। यानी यू कैन सी दैट मैं देख रही हूँ कि मेरा वैल्यू तो बदल रहा है, किसका, करंट का। आई वर्सेस टी अगर मैं बनाऊँ तो आई कैन सी दैट करंट की वैल्यू तो बदल रही है, पर करंट इज़ ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। तो इस तरह का डीसी मुझे रेक्टिफायर दे देता है, और सिर्फ इस तरह का ही नहीं, वो इस तरीके का भी देता है जहाँ ये कंटिन्यूटी आती है। ये आपको देगा हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये आपका है फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसी में अगर आपने फिल्टर सर्किट जोड़ दिया, फिल्टर सर्किट जो एक तरीके का क्या है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट या एलआर सर्किट, तो इन दोनों सर्किट्स की वजह से क्या होता है, आपको मिलता है कंटिन्यूअस डीसी सप्लाई विद नो रिपल इफेक्ट्स। ये जो आपको दिख रहा है ये कंटिन्यू तो है, पर रिपल है इसमें, रिपल्स, बट इस केस में कंटिन्यूस मिलेगा विद नो रिपल इफेक्ट। यानी आपको वैसा ही डीसी मिलेगा जो आप बचपन से बनाते आए हैं, क्लास 10th में भी आपने बनाया होगा इस तरीके का। तो अरेंजमेंट क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर की अरेंजमेंट ये है कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जिससे आपने क्या बनाया, आपका सोर्स। अब यहाँ पे आपने एक एसी सोर्स लगाया है। अब यहाँ से आपने अपना डायोड ऐड कर दिया, और यहाँ पे आपका क्या है, लोड रेजिस्टर आरएल। अब क्या होगा कि जैसे आपने इसको दिया, अब यहाँ पे अगर पोलैरिटी प्लस माइनस है तो यहाँ पे आएगी माइनस प्लस। आपको पता है ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन से काम करता है, पोलैरिटी अपोजिट आती है। ये माइनस में आ गया, यानी आपके पी साइड पे क्या है, नेगेटिव पोलैरिटी। अब पी साइड पे अगर नेगेटिव पोलैरिटी आई है तो ये तो आपको एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म दे रहा है। लेट्स से इनपुट में आपको ये मिल रहा है कंटिन्यूस, पर यहाँ क्या बना है, ये प्लस में आया था तो ये नेगेटिव में जाएगा, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे जाएगा, ये जो इधर इनपुट में जा रहा है। अब आउटपुट जब आपको आरएल के क्रॉस मिलेगा तो आप देखेंगे कि क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से आया था, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पी साइड के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये रिवर्स बायस में है। और अगर ये रिवर्स बायस में है तो कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा, पहले हाफ साइकिल में कोई करंट नहीं आएगा। द मोमेंट दिस विल टर्न प्लस माइनस एंड दिस विल टर्न प्लस, ये वाली चीज़ प्लस में कन्वर्ट होगी और ये माइनस में, और मेरा पी साइड प्लस टर्मिनल से कनेक्ट हुआ तो इट वुड टर्न फॉरवर्ड बायस एंड इट विल हैपन। यहाँ के बाद यहाँ पे आपको करंट मिलेगा। और ये घट क्यों रहा है, क्योंकि जब आप एसी वोल्टेज दे रहे हैं तो एसी वोल्टेज जो आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, तो जो करंट जनरेट हो रहा है अक्रॉस द डायोड वो भी कम हो रहा है, तो इसलिए वैल्यू ऐसे घटती हुई नज़र आ रही है। देन फिर से ये साइकिल रिटर्न होगी, जब ये नेगेटिव होगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिवर्स बायस, एंड देन फिर आप इसको फर्दर ऐसे करेंगे फॉरवर्ड बायस, एंड दिस इज़ हाउ यू विल गेट द आउटपुट इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव क्यों है, क्योंकि एक पूरी वेव आपने दी थी और आपको मिल रहा है सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर पे आउटपुट। या नाउ अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। अब आप इसमें ये भी कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज़ इसकी है तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज़ ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक पूरी साइकिल में यहाँ पे जैसे आपको जितना आउटपुट वेरी करता हुआ है उसमें आपके पास 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक एक आउटपुट आपको मिला है, यानी एक पूरी साइकिल के लिए आपको सेम उसी फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट मिला है। पर अब बात करते हैं इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में आप क्या करते हैं, 2 डायोड्स लगा देते हैं, और यहाँ पे आपने लोड रेजिस्टर ले लिया है। लोड रेजिस्टर के बीच में आप सेंटर टैपिंग रखेंगे यहाँ पे,
क्यों? क्योंकि सेंटर टैपिंग क्या करती है, 0 वोल्टेज प्रोवाइड करती है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं यहाँ पे देखूँगी मैंने पहला प्लस माइनस दिया है, तो यहाँ पे मुझे पता है माइनस प्लस बनेगा। अगर ये माइनस प्लस बना है यानी ये 0 के कंपैरिजन में नेगेटिव और ये 0 के कंपैरिजन में पॉजिटिव, तो अब ये वाला डायोड तो मेरा D1 जो है मेरा ये रिवर्स बायस होगा, पर मेरा D2 जो है ये फॉरवर्ड बायस होगा। यानी मेरा जो आउटपुट आने वाला है वो D1 की वजह से तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, पर D2 की वजह से वैल्यू आएगी। यानी आई विल गेट द आउटपुट हैज़ दिस, क्योंकि D2 मेरा अभी भी फॉरवर्ड बायस में जा रहा है, प्लस टर्मिनल कनेक्टेड है, तो मेरा पहला आउटपुट D2 की वजह से आया। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द साइकिल में मेरा आउटपुट D1 की वजह से आएगा। क्यों? क्योंकि D2 अभी रिवर्स बायस हो जाएगा और D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। देन फर्दर यहाँ पे D2 एंड देन फर्दर यहाँ पे D1, एंड दैट्स हाउ द साइकिल वुड कंटिन्यू। और आप इसमें ये भी बना सकते हैं, ये आपने बनाया अपना इनपुट वेव फॉर्म, जैसे आपने इनपुट वेव फॉर्म ऐसे बनाया है। फिर आपको जो डायोड में एंटर हो रहे हैं वो वेव फॉर्म आपका अपोजिट बनेगा, अपोजिट पोलैरिटी का, एंड देन जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है। इस केस में फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट की 50 हर्ट्ज़ है तो आउटपुट की आप देख सकते हैं डबल, एक ही साइकिल में डबल बार आउटपुट आपको मिला है, तो दिस कम्स आउट टू बी 100 हर्ट्ज़। फिर फर्दर आप इसमें अपना एक कैपेसिटर सीरीज़ में लगा के, और मतलब इसी सर्किट में अगर मैं कैपेसिटर लगा देती अभी यहाँ पे, आपका आउटपुट लेट्स से, चलिए यहाँ पे आते हैं, ये आपका आउटपुट आ रहा है किसका, डायोड का। इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। अगर आपका ये पल्सेटिंग डीसी ऐसे आ रहा है और आप इस पल्सेटिंग डीसी के रास्ते में एक कैपेसिटर लगा देते हैं और यहाँ पे आप अपना RL रखते हैं, तो इसे आपका क्या बताएंगे आप, इसे फिल्टर सर्किट है ये। यानी यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है, पर कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर ऑल्टरनेटिवली चार्ज और डिस्चार्ज होके, चार्ज एंड डिस्चार्ज होके, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइकिल में कैपेसिटर फुली चार्ज है, तो जब मेरा यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब बेसिकली एक आउटपुट आ रहा है, तो कैपेसिटर वुड अलाउ इट टू पास थ्रू इट एंड दिस लोड रेजिस्टर विल वर्क। नाउ द मोमेंट द आउटपुट बिकम्स 0 फ्रॉम हेयर, उस एक मोमेंट पे कैपेसिटर क्या करेगा, जो ऑलरेडी वो चार्ज है वो पास ऑन करेगा। यानी इस केस में RL के अक्रॉस जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, पहले ये, पर जब आपका ये आउटपुट यहाँ से घटने लगेगा, उस एक मोमेंट में ये उसे घटने ही नहीं देगा, ये वैल्यू देगा उसे, एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। मतलब जो साइकिल ऐसे बननी थी, ये जब ये घट रही है तो यहाँ पे मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होके आउटपुट दे रहा है, एंड आई विल गेट नियरली इक्वल टू a constant DC like this, and that's how the full wave and half wave rectifier work upon, and that's all. Thank you all, thank you for your patience. Let's keep studying.